भगवती निशेष जाड्या पहा. Dear Science in Japan. Dr. Murugesan sir has published over 30 research papers in reputed journals and attended 45 national and international conferences where he received Sudarshan Bhatt, a Memorial Prize for Best Master Thesis at IIT Madras in 2006. Now, I would like to request Dr. Jayaprakash Murugesan sir to please come over to the stage and address the gathering. Thank you. Our group director and our directors are group directors are best of honor, Professor Arju, and group coordinator, Professor Vijay Pandita, and Professor Sarat, P.T.R. Gopal, and Professor Gaurav Sahu, co-coordinator of this group, and HOD Mechanical, Professor Girish Kumar, and all other technical participants, students, and staff. So very good morning to all. Good morning, sir. I am pleased to be here for this inauguration ceremony of this particular program on smart manufacturing tools and technology for industries of country. So first of all, I congratulate this Oriental Institute of Science and Technology Administration and also the board coordinator for organizing such a current relevant course related to industry. And also this is not only for industry, but also I think for students. It will enhance their job opportunities. And the course, I saw the course also. The course is designed in such a way that you can learn the fundamental things and advanced things. In addition to that, practical training also. And the course was taught by experts in the area related to industry and also related to the software and this advanced manufacturing. And I also get that in they have advanced facilities to train you practically in this smart manufacturing technique. And this is one of the reputed private institutes in Delhi and totally 8 years old institute. So it has a very good facilities. So the thing is you make use of this opportunity and learn the things. Okay, and so myself, I am working in the Department of Metallurgy Engineering Material Science. So my research area is mainly related to design of components against failure for automobile, aerospace, and also turbines. So in all these cases, we need advanced simulation. And also I am working related to automobile and manufacturing. So 3D printing and nowadays the solid state and manufacturing. And for everything, the smart manufacturing. And also the demand for the need of development in areas power sector or automotive never ends. Okay. So for example, power sector, we need to generate power. For that we need to identify and increase the performance of the engine. And also, for example, to the aerospace sector, there is a need to develop lightweight sector. Everywhere for that we need smart manufacturing. To reduce the weight we need smart manufacturing technique. And also we need to adapt because many cases now our advanced materials are developed with high strength and high durability. So the thing is, but it's costly. So we cannot waste
that, so we need to go for like 3D printing or advanced printing, so that we can reduce the wastage of machining and something like that, and also we can make whatever design you want. So I think this course, whatever this they and going to organize in this smart manufacturing tool is like very relevant to the current situation. So my submission is to all the participants is please learn and expertise in this area, and most of the participants are faculty. So you can widen your knowledge in this area, and you can share this to your students and train your students, and your students will get benefited. They can get they will join in some industry, and that industry will get benefited. So it will raise our best wishes for the success of this program. So I thank you very much for this. Oriental Institute of Science and Technology administrates for organizing such a current relevant course related to industry. And also this is not only for industry, but also I think for students. Organized by the Department of Mechanical Engineering, Oriental Institute of Science and Technology. The flagship of Oriental Groups of Institutions, Bhopal started functioning in the academic year 1995 to 1996. The institute is well known for Jitendra Pandey sir, along with other faculty members, staff, and faculty participants from various institutes. Now I would like to request the dignitaries to please come forth and for the lamp lightning engineering from GEC Bilaspur. Shri Austin has vast industrial and academic experience in which he has served the edible oil sector for 10 years and had an experience of over 20 years in academics. Our chief guest, Dr. Jay Prakash Murugesan sir, Speaker of the Day, Dr. Sharad Pradhan sir, Guest of Honor, Shri R.K. Austin sir, Group Director Oriental Group, Dr. P.G. Bargali sir, Director OISD, Dr. Rajesh Shukla sir, Head of Department Mechanical. With us, Shri R.K. Austin sir as Guest of Honor, who is presently the Head of Department in the Global Skill Park City Campus Bhopal and also working as Deputy Director, Admission Examination and Affiliation. He is also the Principal of the Institute of Training of Trainees. Shri Austin has completed. First of all, I would like to thank to AICT to sanction this Atal FDP to our institute. We are proud to have 2 weeks Atal FDP in OIST. As we all know that AICT has sanctioned only 200 Atal FDP in over India, and we are one of them to get this Atal FDP. So once again, the motto of AI, we are proud to have 2 weeks Atal FDP in OIST. As we all know that AICT has sanctioned only 200 Atal FDP in over India, and we are one of them to get this Atal FDP. So once again, the motto of AICT is to inculcate the culture of learning new technology, and hence once again I thanks to AICT. I thanks to college management for providing all necessary support and guidance. I thanks to respected Group Director Sir Dr. P.C. Bargali Sir, Director Sir Dr. Rajesh K. Shukla Sir for his consistent ये वायर लगा शुरू हुआ कंट्रोल यहाँ पर ये वेस्टेज हो रहा है शुरू कौन सा रहता है उसको कंट्रोल वायर ये देख सकते हैं बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं एप्लीका लगता है सर ये
सेटअप हमारा जो सबसे एडवांस मॉड्यूल है M6 मॉड्यूल, उसमें 2 टाइप की मशीन है। ये दोनों 5 एक्सिस मीडियम मशीन है और सबसे ज़्यादा महंगी जो है DMG मॉड्यूल है। ये सब जर्मनी और पोलैंड और जर्मनी DMG मॉड्यूल जो है जर्मनी में है मेन प्लांट और पोलैंड में है जो DPDCT स्टैंडर्ड जो है हमारी करने वाली। आप लोग अभी जाएंगे आपको पता चलेगा। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए तो रिजल्ट तो बहुत बड़े पूरा जर्मनी का experience in which he has served the edible oil sector for 10 years and had an experience of over 20 years in academics. I would like to request Shri R.K. Austin sir to please share his thoughts with us. लूज हो जाता है, वो लूज हो जाता है, कहीं ना कहीं से निकलने लगता है। उसके बाद भी एकदम से नहीं निकलता है, आपको डाल के थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है। छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आप स्क्रैप करेंगे तो थोड़ा आराम से निकल आता है, अदरवाइज बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब शुरू में हम लोगों ने आया था तो हम लोग को इसका आइडिया ही नहीं था, तो हम लोगों ने एक प्रिंट निकाला और वो जब उसके साथ कर रहे थे ये सब, तो राफ्ट बनाया था उसमें, तो वो प्रोडक्ट तो निकल के आ गया, वो राफ्ट वहीं रह गया। अब वो राफ्ट वहीं रह गया, वो राफ्ट वहीं लगा रहा। तो अब हमें यही समझ में नहीं आया, फिर हम लोग कंपनी वाले को फोन लगाया, हमने कहा भाई तो चिपका ही रह गया, वो हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, कहीं से प्रिंट से लगाया, तो जैसे मेरा राफ्ट गड़बड़ करने लगा, मुझे समझ आता हाँ यार गड़बड़ हुई, उसको फिर से रिस्टार्ट, ठीक है। ना हम लोग एक डमी प्रिंट निकाली करेंगे कि ये देखिए, ये जो है ये सॉफ्टवेयर जो है, ये दूसरा सॉफ्टवेयर है, जो आपको बताना नॉर्मल सैनिटाइजर ये वाला यही था, ये वाला बस ये इसमें क्या नेटिंग कर देता है ना, तो वो एलेशन भी आ जाता है और निकल भी आराम से जाता है। बता दी वो तो थोड़ी देर में, तो 5 मिनट वैसे तो टाइम थोड़ा और देना चाहिए, अपन थोड़ा जल्दी करें तो देखो ना कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, नॉर्मली टाइम देता है। ये कुछ इसका मिनिएचर बना रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। हम ऐसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों प्रोजेक्ट में भी हम लोग यही सोच रहे हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करें। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, जो हमारा प्रोजेक्ट हम बनाने की सोच रहे हैं वो ये एक तरह का मोमेंटो बनाना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग 3D प्रिंटिंग में उसका बेस बनाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दिस बेस, समथिंग लाइक दिस ऐसा क्रिएट करना चाह रहे हैं। उस पर एक लेजर कट एक हम वो लगाना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, जैसे ये क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा यहीं पर आपका एक लेजर इनग्रेव, उसको भी लेजर इनग्रेव होने वाली, तो लेजर कटिंग सेक्शन में ये वाला पूरा पोर्शन इस्तेमाल होने वाला है, और एक MDF बोर्ड से यहाँ पर हम लोग एक स्टिक ऑन लगाना चाह रहे हैं। तो MDF पतली MDF है हमारे पास, एक 1.5 mm वाली, उसको हम लोग यहाँ पर मतलब आप पर्सनलाइज कर सकते हो, चीज़ लिख के, टेक्स्ट लिख के, अपना कॉलेज तो यहाँ लिख के उसको यहाँ पर स्टिक करें। Smart manufacturing tools and techniques for Industry 4.0 life. कैसे होता है? तो अगेन गो फॉर दिस टूल्स में आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शंस, और ऑप्शन में आपको आना है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे कि आपकी थीम थी, आप ऑलरेडी एक्वेंटेड हो गए हैं, कल भी अपना थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ था, सो वी ऑल आर एक्वेंटेड विद द थीम इज डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। सो फर्स्ट सेशन प्रिंट्स एक साथ दे दो, आपने एक को बेड के इस कोने पे लोकेट कर दिया, एक को बेड के इस कोने पे लोकेट कर दिया, अलग अलग जगह पे आपने लोकेट कर दिया और आप कर सकते हो, तो उसको आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका ऑप्शन दिख रहा है वो आपका स्केलिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, जो मैंने अभी किया, वो जो एक्चुअल डिजाइन था वो छोटा था। तो ये बिगिनर टूल्स, प्रोफेशनल टूल्स, इनमें से कुछ फ्री भी हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव चेक टिंकरकैड। आप लोगों से किसने टिंकरकैड देखा है? टिंकरकैड जिसने नहीं देखा है तो आप लोग अभी देख सकते हैं टिंकरकैड।
advanced certificate in precision engineering. Advanced certificate in precision engineering. Or this course is a multidisciplinary study and practice of high accuracy engineering, designing and manufacturing. This is a fully practical oriented, practice oriented workshop based course है with hands on experience. वहाँ से x, y, z और z एक्सप्लेनर, इसलिए हर ऑब्जेक्ट में आपको ये 3 डिफरेंस प्लेन मिलेगी, है ना। यहाँ पर प्लेन सिस्टम एक्टिव है, आप यहाँ पर एक्सिस widen your knowledge with you, and you can share this to your students and train your students, and your students will get benefited. You can get कुछ सांसों के अंदर जा रही हैं और बाहर की ओर आ रही हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। चेहरे के ऊपर तरीके से मुस्कुराहट जिससे ब्लड का सर्कुलेशन पूरा आपका फेस और मस्तिष्क में हो। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। आपकी जो सांसें और जाती हुई सांसें
तो दिस इज इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज टू क्रिएट कंप्लीटली सरियल एटमॉस्फेयर आप कंप्यूटर जनरेट कर सकते हैं, बट ऐसा कि वो आपके एनवायरनमेंट में रहे और अनरियल ना लगे। अगर वो अनरियल लग रहा है तो फिर बेकार है। ये BBC का है, BBC सिविलाइजेशन दुनिया की थोड़ा मोटा अंदर से मांगी अभी आ जाएगी फोटो This is the final product that we got from laser cutting. नहीं आ जाए फोटो This first one, the base product, is from the 3D printing, that is additive manufacturing. The first step that we took while creating this workspace or an object was to develop a CAD model with a CAD software. For your convenience, you can use AutoCAD, CATIA, or SolidWorks, or any other software. In the developing CAD software, this model was created, and then it was converted into an STL file, and then sent to a slicer, like Ultimate Cura, where multiple slices are written of this of this model, and then it is sent to the 3D printer that we have here, that is Adventure Board from Flashboard. And in a time of 2.5 hours, this product was created completely by 3D printing. The another that we have is an acrylic product, where engraving and cutting is done by a laser cutter that we have here. A CO2 laser has been used to develop this very sample that we have here, in which two operations are done daily, that is engraving and the second is cutting. The picture you see here is our founding chairman of Oriental Group, Dr. K. Thakral, sir. And the picture you see in it is actually the engraving that is done on the material, that is acrylic. And the fitness, as you can see in the picture, is done by the laser, which is quite good considering the quality of the picture that we got. And this outer portion is actually the cutting part, that is the cutter that the laser did with using parameters like speed as well as the intensity and maintaining how much we need according to the convenience. In engraving we use high speed as well as low intensity lasers, and while cutting we need high intensity and low speed. So according to this, this very product was made, and it is completely memento to our founder, Mr. Thakral. So that is it. My colleagues, dear residents, आप सबको मेरा सैल्यूट है, तहे दिल से धन्यवाद है। आप सबने मिल करके इस प्रोग्राम को बहुत ही सफल और एक गरिमामयी जो है इसकी प्रस्तुति आपने दिया है। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सपोर्ट को मैं धन्यवाद कहता हूँ। साथ ही आपको मालूम होगा कि पूरे इंडिया में सिर्फ 200 कॉलेज को अटल FDP दी गई थी। पूरे अटल FDP 200 मिला था। आप देखेंगे लिस्ट में मात्र 6 कॉलेज को मैकेनिकल में दिया गया, 6 कॉलेज को, जिसमें कि हम एक हैं। इसका प्राउड हमें होना चाहिए कि वी आर दी पार्ट ऑफ दिस अटल FDP। पिछले 10 दिनों में जो 6 दिन का लेक्चर था हमारा ऑनलाइन लेक्चर, उसमें भी काफ़ी सपोर्ट मिला। काफ़ी रिनॉन्ड इमिनेंट स्पीकर हम लोग जितना दी बेस्ट कर सकते थे, जगह जगह कांटेक्ट करके हम लोगों ने इंडस्ट्री 4.0 से रिलेटेड ही स्पीकर अरेंज किए। ऑफलाइन में भी जो लेक्चर हम लोगों ने अरेंज किया, दी बेस्ट फैकल्टी नियर बाई भोपाल जो हो सकते थे, क्योंकि उसमें एक लिमिटेशन था 100 किलोमीटर के अंदर, तो हम लोगों ने उसका भी पूरा
कोशिश किया। काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स बाहर से आए थे, लगभग 100+ पार्टिसिपेंट्स बाहर से आए थे जिनको आउट करना पड़ा, क्योंकि उसमें एक क्लॉज है कि 100 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। एनीवे आप सब आए, आप सबका सपोर्ट रहा। थोड़ा सा 1-2 काम और बाकी रह गया है, जिसमें कि एक तो आपका अभी जो असेसमेंट हुआ है ऑफलाइन, ये जरूर प्लीज़ आप अपने हैंड राइटिंग में दीजिएगा, ताकि अपने को भी आगे चलकर दिक्कत न हो, क्योंकि ये सब हमारे साइड से अभी बहुत सारे काम बाकी हैं जो अगले 10-15 दिन में होना है। तो ये मैं अपने एंड पे, मैं और मेरी टीम पूरी डिपार्टमेंट लगी हुई है इसमें, तो वो करेंगे। आपके एंड से ये रहता है एक फीडबैक देना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी बहुत कम अटल FDP दी जाएगी कॉलेजों को, तो हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यदि आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा फीडबैक दीजिएगा, तो नेक्स्ट ईयर भी हम लोग मिलेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक अटल FDP नेक्स्ट ईयर भी अपन ले। लास्ट ईयर भी हम लोग का ई-व्हीकल पे था, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो एक ऑलरेडी अटल FDP कर चुके हैं, ये भी सक्सेसफुल रहा अपना, और आने वाले समय में भी जो है कोशिश करेंगे कि अटल FDP मिले। एक और बहुत अच्छा प्रोग्राम अपने को मिलने वाला है, पूरे इंडिया में 70 कॉलेज को मिला है, जिसमें कि हो सकता है कि एक अपना रहे, उसकी भी प्रयास जारी है। यदि वो सफल होते हैं तो शायद भोपाल में हम इकलौता ही रहेंगे, तो उसमें भी हम आपको बताएंगे। एक ही दिन का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है, अभी भी मिला नहीं है इसलिए। कैसे होता है? तो अगेन गो फॉर द स्कूल्स में आपको मिल जाएगा ऑप्शंस, और ऑप्शन में आपको आना है इंफ्रास्ट्रक्चर।
ये स्टेज जो है शुरू होती है। तो इस तरह से हमको ये देख सकते हैं बहुत सारे प्रोफाइल हमने ऐसे का लगता है। सर ये सेटअप हमारा जो सबसे एडवांस मॉड्यूल है M6 मॉड्यूल, उसका जो टाइप की मशीन है, ये दोनों 5 एक्सेल मीडियम मशीन है और सबसे ज़्यादा महंगी जो है DMG मॉड्यूल है। ये सब जर्मनी और पोलैंड और जर्मनी पोलैंड DMG मॉड्यूल जो है जर्मनी में है मेन प्लांट और पोलैंड में है जो CTS 100 जो है हमारी लर्निंग वाली। आपको अभी जाएंगे आपको पता चलेगा। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए तो रिजल्ट तो बहुत बड़े थोड़ा जर्मनी का। जिसमें कि आपके पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाता है, जिसमें कि टोटल प्रोडक्शन मैनेजमेंट आ जाता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाता है, MIS जिसको बोलते हैं। In this way I am trying to show a picture of the industry where we are working, and also at that time we are trying to show how an enterprise is working. An industry is something which is located at one place, but when I am saying an enterprise, everything that is going to feed this industry is coming as an enterprise. So this is a larger picture, this is a bigger superset which includes this industry. And when I am saying something about the industry 4.0, it is again the superset. Industry 4.0 में क्या कहता है कि you have to connect each and every module right from input to the output, all those enterprises through your information system. And this information system is not limited to what we are seeing as the ERP or the single server system. It is the cloud-based system. That means उसकी जो scalability है, information का flow है, that flow will be the all data. As you all are aware, you are engineer, you know it better कि आने वाला जो समय है ना, वो सिर्फ डाटा का है। जिसके पास डाटा रिच है, तो डाटा जिसके पास में है, वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा। आज की डेट में आपके बारे में आपसे ज्यादा जानकारी गूगल को है। आपको मिलेगा नहीं तो मैं जाता हूँ। अगर आप देख लो कि रिसेंटली आई गॉट, मैं कुछ दिन पहले विजिलेंस में था, कंपनी के विजिलेंस सेल का इंचार्ज हुआ करता था। एक समय मेरे पास में ऐसी एक केस आया कि सर आपको यहाँ नहीं थे, इस पर्टिकुलर प्लेस में आप नहीं थे, तो व्हाट आई डिड, गूगल टाइमलाइन, you go for the Google timeline and you will have the history, which place you have moved, at how many times you were there, at what time you were at what place. So I collected this data from the Google timeline and put it before our top authority, and they have to accept it because Supreme Court is also going to accept this Google timeline as one of the evidence. So this is what I am saying. You don't know about yourself much, then nowadays the Google is knowing much more about you with respect to what you are knowing about yourself. So this is what time has come. Second, the form of the data is not limited to the text. Data can have any form. It can be in the form of videos, it can be in the form of pictures, it can be in the form of text, it can be in the form of audio, it can be in the form of books, it can be in the form of journals, it can be in the form of magazines. And you can collect the data from anywhere. This is the now. पहले आप समझ लो कि कंप्यूटर की जो एस्टैब्लिशमेंट जो भी हुआ 78, 79 के आसपास में हम मानते हैं कि डाटा जनरेशन और डाटा एक्विजिशंस हम करना चालू किए। एंड 1999 के आसपास से जितना हम डाटा कलेक्ट करते थे, वो सारे डाटा हमने 2000 के आसपास में ला के सर्वर बेस्ड सिस्टम हमने लागू किया। एंड नाउअडेज यू डोंट हैव टू स्टोर द डाटा, यू डोंट हैव टू परचेज द स्पेस फॉर दिस वन। क्लाउड कंप्यूटिंग या आज की डेट में आप सारे गाना जिस तरीके से यूट्यूब पे पा लेते हो, ये सब क्या है? देयर इज अ सर्वर व्हिच इज ऑलरेडी लोकेटेड एट सम डिस्टेंस प्लेस एंड यू आर सर्चिंग इट आउट, immediately you are getting the data from there without for
paying not even a single penny for that one. So these are not, but how these companies are earning? Google's, YouTube, Meta, उसको यूनिवर्स की बात छोटी, मेटावर्स आ गया है, वर्चुअल वर्ल्ड आ गया है, ऑगमेंटेड रियलिटी के वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी के वर्ल्ड में रह रहे हैं. So the world is completely going towards a completely different area, different vistas we are going to look into. And in this vista, you are the modern people where you will have to survive. Second important thing is nowadays, the कोई भी प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है आज की डेट में, which used to be earlier कि एक बार एक हमने एक जॉब बनाया, वो जॉब जो है कम से कम 20-25 साल चल जाता था. एक स्कूटर का मॉडल डिजाइन करते थे, you will surprise to know LML Vespa का नाम कभी सुना ना आपने? Where is now LML Vespa? It is one of the best scooters of the time. 90 के समय में 89 के समय में LML Vespa जब आया था, तो ये उसमें बजाज स्कूटर को एकमात्र चैलेंज करने वाला गाड़ी था. और विदिन 5 years, a number of vehicles like Activa तो बाद में आया, Activa के समय उसमें Kinetic Honda था, Kinetic Honda, और उससे पहले एक और गाड़ी थी जो काफी लो आए, और जैसे वो बेसिकली गियरलेस vehicles, and they came and immediately the LML Vespa has gone out of the market. This is what I am seeing. The one life cycle of one product is no more longer existent. ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा. जो पहले 20 साल था, आज की डेट में मुश्किल से ये जो है 5 साल 7 साल चलेगा. और अगर आप एज ए इंजीनियर उसके साथ काम करते हैं तो यू नो हाउ टू सर्वाइव इन द कमिंग मार्केट. आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं अगर उसमें आप इनोवेटिव और क्रिएटिविटी नहीं डाले 5 साल में, तो द थिंग इज दैट the product will be obsolete in the market, and as an engineer you will also be obsolete. This is what the dynamic situation is nowadays. It is not as if the industry is running. अभी हम आपको दूसरा एग्जांपल बताते हैं. BHEL in 1912, 2012 में BHEL established way back in 1957 with a view to it will provide a complete power manufacturing equipment company. Large power हम सबमिट करेंगे. बड़ी अच्छी थी, बड़े आसानी चल रहे थे. वी आर यूज्ड टू बी, हम कहते थे कि बड़ी अच्छी कंपनी ज्वाइन किए हमें. 2012 तक ये लगभग 45,000 करोड़ का टर्नओवर देता था, विद एन आउटस्टैंडिंग टर्नओवर पोजीशन विद 2,80,000 के हमारे आउटस्टैंडिंग डिलीवरेबल्स थे. सो वी वर क्वाइट रिच. और कैपिटल कंपनी तो बस मस्त है, हम भी मस्त, कंपनी मस्त. एक बार ले बेड़ा पार. बेड़ा पार में BHEL का अलग हम लोग के बाद हंसते भी थे और कहते भी थे, बी हैप्पी एंड एंजॉय लाइफ. दिस इज व्हाट द BHEL. 2012 में गवर्नमेंट चेंज हुई, सरकार आई मोदी जी की. मोदी जी गए पेरिस में समझौता किए. आई कैन सिंपली टेल व्हाट द challenges that I have faced when I went for the whole automation from end to end, and that is the topic that I have chosen for. But before that, what I am trying to show the working environment जहाँ आप सबसे मालूम है सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है ऑनलाइन क्लासेस की. चाहे कोई भी बच्चा हो जो क्लास 4, 5, 6, 7 से जिसको हम बनाने लगते हैं इंजीनियर, IIT इंजीनियर फ्रॉम द एज ऑफ क्लास 4 में बच्चा गया और उसके माँ बाप पूछने लगते हैं इसको तो कुछ दिन में फर्टिलाइजर में डाल दो, इन्फिनिटी में डाल दो, कोटा में पढ़ा देंगे एंड इंजीनियर बना देंगे. ठीक है, लाइक दिस द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स. और उसके लिए क्या है, वो ऑनलाइन क्लासेस करेगा. द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द ऑनलाइन क्लासेस इज दैट ऑनलाइन क्लासेस हैज ब्लॉक्ड योर माइंड ऑफ इमेजिनेशन. आपकी इमेजिनेशन करने की शक्ति को उसने रुद्ध कर दिया है. जो आप देखते हो बस उसी को रियलिटी समझने लगते हो कि यही दुनिया है, इसके अलावा दुनिया नहीं है. दिस इज वेयर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन. जब आप कुछ पढ़ते हो और विजुलाइज करते हो एंड ट्राई टू सी न्यू, तो चिंतन करते हो, तब आपकी स्टडी का एक पार्ट कंप्लीट होता है. व्हाट हमारे यहाँ कहा जाता है, पहले पढ़ो, मनन करो, फिर एक्सपेरिमेंट करो, देन यू आर द कंप्लीट प्रोसेस. आज की डेट में आप सिर्फ देखते हो और लगता है कि यही रियलिटी है. आप इंडस्ट्री 4.0 पे चल जाओ. आने से पहले हम कहते हम भी 2-4 लेक्चर देख लें यूट्यूब पे क्या होता है ताकि बोलने में सुविधा रहे. सो आई कैम टू नो एवरीथिंग इज मूविंग इन सच अ फास्ट पेस. ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. आपके पास में ये सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी होगा या साइबर सम सिस्टम्स होगा जहाँ से क्लाउड के थ्रू आपके पास में आ जाएगा डाटा विल इमीडिएटली मशीन लर्निंग हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दिस आर द वर्ड्स बॉम्बास्टिक वर्ड्स दे आर गोइंग टू यूज इट. बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द ऑटोमेशंस यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स.
And this is what the topic that I have chosen for. कि दिखने में बड़े आसान लगते हैं लेकिन बनाने में उतनी ही मुश्किल है। जुरासिक पार्क के एक एक मूवी को एक एक जो इंस्टेंसेस है उसको कॉपी करने के पीछे में किसी को नहीं विश्वास है 320 घंटे का टाइमिंग लगता था। एक एक जो पिक्चर्स आते थे आपके पास में 320 घंटे का टोटल टाइम लगता था उसके पीछे क्रिएट करने में। So this is what you were trying to see, the effort that has put behind is much more and it is a highly quantifiable, जिसको मतलब quantified की स्केल की बहुत बड़ा है। So this is where the world is moving towards। कोई भी चीज एक तो प्रोडक्ट के नाम पे आप समझ लो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कम है। आज की डेट में इवन आपकी लाइफ साइकिल, अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब से कि सर आपकी जो नौकरी है ना, हम लोग जब नौकरी ज्वाइन करते तो सोचते थे कि सर 60 साल तक नौकरी करेंगे, ज्वाइन किए बस ठीक है 60 साल। टुडेज डेज इज योर सर्विस इज हार्डली आफ्टर 20 इयर्स। अब 45 साल से ज्यादा नौकरी नहीं कर पाओगे, या तो आपको कंपनी निकाल देगी या आप दूसरा कंपनी फॉर्म कर लो out of frustration. This is what the world is. And this is what the situation is going on. और ये दोनों में फायदा है आपको। Don't try to see the other way. The फायदा ये है कि 25 साल में नौकरी करोगे, 20 साल में इतना पैसा कमा के रख लोगे कि अगला पूरा निकल जाएगा। दूसरा ये होगा कि या तो आप नई कंपनी के मालिक बन जाओगे। This is where the situation is. You cannot work. After being 45, you are going to a service provider. आप सर्विस दोगे दूसरे को। This is where the world is. So, based on this background, I am trying to come to the actual work that we are trying to do. जब हम कर रहे थे supply chain management में, supply chain is nothing. What I am saying, every place, every process where you are adding some value is a part of your supply chain. Like input material से लेके final. So, why we have gone for this one? As in terms of the BHEL, BHEL has 19 manufacturing units spread all around India. It starts from the top, Rudrapur, Haridwar, and then till the Krishnapalli and the Bangalore at the bottom. 19 manufacturing units, and all are doing the different jobs. इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है आज की डेट में जो बेसिक वर्ल्ड में जो चीजें हैं ना, कोई भी चीज जो हम जो बोलते हैं MNCs है, MNCs किसी का जो डिफिनेशन है ऑन व्हाट 4 प्रिंसिपल्स MNCs वर्क्स। MNCs सिर्फ 4 ही किसी भी कंपनी के या किसी भी कंपनी के MNCs होने के जो क्राइटेरिया वही 4। दिस इज व्हाट द वन इज द कॉस्ट, अनदर इज द क्वालिटी, थर्ड वन इज द डिलीवरी एंड फोर्थ वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी। आई विल कम टू द वर्ड फ्लेक्सिबिलिटी लेटर ऑन। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉस्ट इज। आप एक प्रोडक्ट ए बनाते हैं और उसको मार्केट में लेके जाते हैं। अर्लियर मैनेजमेंट का फंडा था कि कॉस्ट के हिसाब से हम चलते थे कि हमने जितना इसमें मटेरियल लगाया, जितने हमने इसमें ओवरहेड्स डाले, उसको सबको जोड़ते थे। देन वी कम टू अ कंक्लूजन दैट दिस द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज अबाउट से 100 रुपीज। बट this is what your definition of the 100 rupees is. This is what your valuation is 100 rupees. Nowadays you cannot say this is my 100 rupees में आप ले लो। Nowadays the things has changed. What when you are taking this product to some place और उससे हम बात करते तो जो हमारा कस्टमर है वो बोलता है कि whether it has the value of 100 rupees or it has the value of 60 rupees. So the cost is no longer the criteria. Cost is now has been changed to the value. और पहले हम क्या करते सप्लायर साइड से इसको कॉस्टिंग करते थे, आज की डेट में डिमांड साइड से इसकी जो है वैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन होता है। सो इन दैट वे व्हाट आई एम सेइंग, MNCs are working based on your value system, not on the cost system. This is what the difference is. Second, if I say quality, कोई भी MNCs का क्वालिटी या लाइक यू टेक द एग्जांपल ऑफ द बेटर वन ऑफ द मैकडॉनल्ड्स और KFC का बेंगलोर में खा लो, आप भोपाल में खा लो और दिल्ली में खा लो, यू आर गोइंग टू हैव द सेम क्वालिटी। ठीक है, व्हाट इज अब मैकडॉनल्ड का खा लो, दे ट्राई
कि वो प्रयास करते हैं कि जो क्वालिटी आपको वहाँ मिले वही क्वालिटी यहाँ भी मिले। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इस लेवल तक स्टैंडर्डाइज किया है कि क्वालिटी सिर्फ प्रोडक्ट के स्वाद में नहीं है, उनके डिलीवरी में है, उनके साथ जो आदमी काम करता है उसके सर्विस में है, कंफर्मेंस, परफॉर्मेंस, व्हाट यू कैन से, एस्थेटिक सेंस, एवरीथिंग कम्स अंडर क्वालिटी। ठीक है, feasibility, reliability, whatever the things are there, you can put all those attributes that comes under the quality, and they're trying to maintain that quality. So MNCs एक और भी बता दें, multinational companies, and there is a difference between multinational companies, there is a difference between global companies, and there is a difference between the what you can say एक कंपनी एक ग्लोबल हो सकती है, एक मल्टीनेशनल हो सकती है। What the other one is the international company. The difference is little bit, but it is a minor. एक हमने एक वर्ड हम लोग को आपको पता हो ना हो, इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में सब बाहर से बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन हम भी कुछ देते हैं। हमने एक दिया है वर्ड ग्लोबलाइजेशन। आपको सड़क का जो पुड़िया होता है ना, या जो सियासी जिसको बोलते हैं, नॉर्मली अगर आप एमवे को देखते हैं, एमवे हैव यू लर्न अबाउट द एमवे? एमवे का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बट यूज जो आप करेंगे बहुत थोड़े थोड़े से करें, एंड इट इज मोर देन सफिशिएंट। एंड दिस इज व्हाट हाउ द एमएनसीज आर वर्किंग, दे आर पुटिंग देयर प्रोडक्ट्स इनटू द लोकल मार्केट सो द मार्केट पेनिट्रेशंस या प्रोडक्ट पेनिट्रेशंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। सो व्हाट दे यूज्ड टू, दे वर कमिंग विद द बिगर वॉल्यूम आइटम, लेकिन इंडिया में जब वो आया तो देखा कि इंडिया में तो चलता ही नहीं है। तो इंडिया में क्या लोकल सैशे 1 रुपये 2 रुपये के सैशे चलते हैं, एंड दिस वाज वेरी यूजफुल। सो हिंदुस्तान लीवर हैज ट्रांसफर्ड दिस सैशे सिस्टम टू द वेस्टर्न कंट्रीज आल्सो। बोले छोटे छोटे 1-2 रुपये के पैकेज में ही इसको। सो आई एम सेइंग दिस लोकल प्रिंसिपल्स हैज बीन बिकम द ग्लोबल, एंड दैट्स द ग्लोबलाइजेशन। एक मल्टीनेशनल कंपनी ये होता है कि उसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं एक कंट्री में होता है, सपोज करें सीमेंस है, सीमेंस हैज द मेन ऑफिस सिचुएटेड इन जर्मनी, बट इट हैज इट्स प्लांट इन इंडिया एज वेल एज मेनी अदर वेस्टर्न कंट्रीज एंड द यूएस आल्सो। लाइक GE is the US based company, but what every production of the GE starts in the US only, and later on आज की डेट में थोड़ा सा उसने शिफ्ट किया था चाइना में, मैन्युफैक्चरिंग हब के हिसाब से। But what they make theirs and try to distribute all among the world. What I am saying, इसको हम कहते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टीनेशनल्स। मल्टीनेशनल में 1, 2, 3 जगह जहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। एक होता है ग्लोबल, हम प्रोडक्ट हम बनाएंगे बट आई मार्केट इनटू द होल कंट्री, ऑल अदर कंट्रीज, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल। एक होता है इंटरनेशनल, जहाँ की जैसे रिक्वायरमेंट वहाँ हम अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करेंगे और उसके हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज इंटरनेशनल। So these are the basic little bit of difference between these three nomenclatures. So what I am trying to show, कि इस सेंस में हम बात कर रहे थे कि आज की डेट में जो माहौल है, हमारे 19 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं अगर मान लो और इंडिया में, और हमको उसको इंटरलिंक करना है। सो व्हाट इज द बेस्ट वे? गो फॉर द इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP। कंपनी का टर्नओवर जो है पिछले 45,000 से घट के हमारा हो गया है 25,000 और समटाइम्स 22,000। कंपनी की स्थिति खराब है और हमको इसको इम्प्रूव करना है। So what are the difficult areas that where we have to put the money? ऑटोमेशन हो सकता है, ऑटोनोमेशन भी हो सकता है, बट एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हम पूरा पैसा एक सिस्टम पे लगा दें तो कैन वी सर्वाइव? नो। क्वालिटी अगर हम मेंटेन करते हैं, अगर 19 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का विद द सिंगल कॉर्पोरेट क्वालिटी, देन वी विल बी एबल टू से कि हाँ हम ठीक है क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं। द फैक्ट इज इट इज नॉट हैपनिंग इन इंडिया। इंडिया में एक लोकल फोर्स होता है और लोकल कल्चर होता है। अगर साउथ में वो कंपनी काम कर रही है बेंगलोर में या त्रिशुनापल्ली में, तो हम पाते हैं कि उसकी जो क्वालिटी है दैट इज मच बेटर देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट इन भोपाल। It is a culture.
बिकॉज द प्रॉब्लम ह्यूमन कल्चर है, हम यहाँ बड़े आराम से जो है उसको मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, बट द फैक्ट इज व्हेन द पीपल ऑफ एमपी देन मूव्स अराउंड द साउथ, दे बिकम वो ढल जाते हैं वहाँ की कल्चर में।